Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, presently working in Mechatronics program of Center for Advanced Studies, which is in campus research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow. This is the second unit or second portion of the last unit of the strength of material subject, and as far as the importance of this topic is concerned, this is very important because rest of the lectures of this unit depends upon this basic fundamentals. Today's topic of discussion is unsymmetrical banding, beam cross section properties, in which we will discuss, or I should say we will recapitulate the things which we have already studied in previous years of our engineering. So, today's topic of discussion for the presentations are we will discuss about the centroid and center of gravity. All of us know, but we will try to refine the fundamentals, or we will try to recall the knowledge which already we have. Centroid versus center of gravity, what are the basic differences between these two, moment of inertia and product of inertia, and we will take some numerical problems on these moment of inertia problems also. Also we will cover the transformation laws for moment of inertia and product of inertia, and then we will take one numerical problem on the transformation laws also. So, these are very important fundamentals as far as the unsymmetrical banding is concerned, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने symmetrical banding में भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है. तो जैसे हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे. सो अगर हम सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रॉयड? So, centroid of the cross section of an area is the point at which all the area may be assumed to be concentrated. So, generally centroid is known as the geometrical center of the object, or we can say of two dimensional object. Let us say we consider any shape. So, let us say this is the arbitrary shape, and if let us say this is the geometrical center of this body. So, let us say this is the coordinate system, this is origin, this is x axis, this is y axis, and let us say the coordinates of this point x bar comma y bar. So, this is the centroid for geometrical body, but what is the center of gravity? So, center of gravity means it is the point inside the body or outside the body where whole weight of the body is supposed to be concentrated. So, let us just to understand this, let us consider this area. So, for this let us divide this geometry into different small portions. So, let us say we have divided this into 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and so on. So, we have divided this body into very small number of portions. Let us say the centroid of this particular geometry, this geometry is let us say here, and the coordinates of this is x1 comma y1 with respect to the same origin. Again for this it is x2 y2, for this x3 y3, for this x4 y4. So, from the formula we can write it as a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3. So, this is a simple theorem by which we can write these as. So, let us say this is a total area. So, total area is sigma a, and उसका जो moment, उसका जो centroid है, उसका जो coordinate है, let us say that coordinate is x bar. So, likewise we can write this as, so x bar would be how much? That would be equal to a1 x1 plus a2 x2 plus and so on divided by sigma a. So, sigma a is what? Sigma a is again, sigma a is what? It is the total area. So, the total area can be written as a1 plus a2 plus a3 and so on. So, from this formula comes. Again this formula also, let us say we divide this like this. So, this is coordinate y1, y2, y3, y4, y5. So, similarly we can also write. So, we got these two equations.
So, let us say we have a definite geometry. Definite geometry means let us say we have a rectangle like this, or we can say we have this L section. So, for L section we can divide this area into two portions, let us say this is 1, this is 2. So, here easily we can calculate the area 1, area 2. So, similarly let us say this is the origin. So, with respect to origin, to determine the coordinates of the centroids from here and for here x1 y1 x2 y2, ये बहुत सिंपल है, यह लो हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेट ज्योमेट्री है। लेकिन इरेगुलर शेप्स के केस में, जैसे ये शेप है, ये इस तरह की कोई शेप है, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वी कैन नॉट यूज दिस समेशन। सो फॉर दैट इट बिकम्स दिस एक्स डी ए, राइट, divided by integration of dA. So, this formula becomes like this. So, we cannot apply this formula, this is for the definite shapes, definite objects. So, likewise this is the centroid. So, centroid means it is the geometrical center. For circle generally the geometrical center means this is the centroid. अगर हम rectangle की बात करें तो अगर ये B है और ये H है तो जो हमारा सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ से B/2 और यहाँ से H/2 मिडिल पे होगा। सो दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज जनरली नोन एज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। So, the moment of inertia or second moment of area about the given axis is the product of the element of the area. दो चीज़ों का product होता है, product of the element of area and square of the distance of the centroid from the axis. Now अब ये कैसे निकलता है? So, अगर हम कोई भी एक object मान के चलें, let's say this is the object और ये हमारा एक छोटा सा elementary area है, let's say this elementary area is A, तो दिस इज नोन एज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। तो अगर हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट आई एक्स। तो आई एक्स अगर निकालना है तो इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट, इस एरिया का सेकेंड मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट क्या होगा, लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इज एक्स कॉमा वाई। तो फर्स्ट मूवमेंट क्या होगा इसका, फर्स्ट मूवमेंट वुड बी वाई इंटू डी ए, फर्स्ट मूवमेंट इज वाई इंटू डी ए। सो फर्स्ट मूवमेंट इज y इंटू डी ए, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। सो इट मीन्स अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई y इंटू डी ए, सो देन इट बिकम्स y स्क्वायर डी ए। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया ओनली। लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट फॉर होल एरिया, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो फ्रॉम वेयर दिस रिलेशन कम्स, so I x is equal to integration of y square dA. Similarly, I y is equal to x square dA. So, these two formulas are very important to calculate the moment of inertia. This is the I is equal to a k square, k is the radius of gyration. Now, we need two theorems, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So, for parallel axis theorem we can take this as I x is equal to I x bar plus a into y bar square और I y is equal to, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट्स से वी नो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो अगर हमें इसका पता है आई एक्स बार, so I x is equal to I x bar means moment of inertia about the centroidal axis plus product of area multiplied by square of the distance of between these two axes. तो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इस बॉडी का एरिया, उसको ऐड कर दो इस वाले में सेंट्रोइडल एक्सिस में, देन वी विल गेट दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेस्पॉन्डिंग टू एनी एक्सिस। ये पैरेलल एक्सिस है। परपेंडिकुलर मीन्स if we know the moment of inertia about this axis and this axis, then the third axis which is here about this we can easily calculate the moment of inertia. So, I x plus I y bar is equal to I z bar. So, this is the perpendicular axis theorem, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, that is why I am rushing quickly. Now, product of inertia. The product of inertia of an area with respect to any two rectangular axes may be defined as the sum of products obtained
बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरिया बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x और y को, और जो फॉर्मूला आता है हमारा दैट बिकम्स आई एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको आई एक्स एक्स या आई वाई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे आई एक्स वाई से, बिकॉज इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। So it is equal to the integration of x y dA, and the product of inertia may be positive, may be negative, or sometimes 0 also. So the product of inertia of an area with respect to two rectangular axes is 0 if either one of the axes is an axis of symmetry. तो अगर हम इसकी बात करें रेक्टेंगल, तो ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। अगर इन एक्सिस के अबाउट निकालो तो अगर x1 के अबाउट निकालते हैं राइट, तो इट विल बी 0, x1 y1 के अबाउट निकालेंगे तो इट वुड बी 0। नाउ लेट अस टेक ए वेरी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है हमको विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस शोन इन द फिगर। तो ये जो एक्सिस हैं ये वाली, तो इन एक्स वाई के अबाउट हमको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वी नो आई एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी ए। सो 0 to 15 हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, और 0 to 2/3 x। तो हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया ये वाला, तो अगर हम इधर 15 चलेंगे तो उधर की तरफ हमारा, तो y और x में एक रिलेशन है हमारा कि जो 2/3 इंटू एक्स, जो हमारा y है, y इज इक्वल टू 2/3x, क्योंकि 15 है और उधर 10 है, तो वहाँ से रिलेशन आया, तो उससे हमें लिमिट हमको निकालने में आसानी हुई, और एक्स वाई डी एक्स डी वाई उसका एरिया हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 0 to 15 एक्स डी एक्स इंटू एंड 0 to 2/3 एक्स वाई डी वाई। इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके जब हम सॉल्व करेंगे, सो हम लोगों को जो आई एक्स वाई मिलेगा दैट विल बी 2/9 मॉड x की पावर 4/4, और 0 to 15 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट आई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/18 इंटू 15 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आया इन दो एक्सिस के अबाउट। कोई और एक्सिस होगी तो डेफिनेटली वी विल गेट सम अदर वैल्यू। तो आई एक्स वाई हमारा इतना आ गया 2812। लेट अस टेक अनदर सिंपल न्यूमेरिकल फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे b और h दो डायमेंशंस दे रखी हैं, और इसका भी हमको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखें तो फॉर्मूला यही है, आई एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी ए। तो डी ए निकालना है पहले हमको, और x और y, और फिर लिमिट्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक 0 to b होगी और दूसरी 0 to h होगी। तो x dx और 0 to h y dy। तो लेट्स से द एलिमेंट्री एरिया, ये वाली जो साइड है इट इज़ dx, और ये वाली जो साइड है इट इज़ dy। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव यू दी dA। सो यहाँ पे लिमिट्स रखी, पहले हमने पहले वाले को इंटीग्रेट किया तो y²/2, उसमें लिमिट्स रखी तो h²/2 इंटू 0 to b x dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आई एक्स वाई इज इक्वल टू h²b²/4। सो दिस फॉर्मूला वी कैन गेट फॉर द rectangular cross section. Now let us take the product of inertia of the area of the quadrant of a circular area। जो हमारा quadrant है 1/4 of the circle है with respect to the x and y axis as shown in the following figure। तो ये वाले दो एक्सिस के अबाउट हम लोगों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो let us take product moment of inertia। So let x is equal to rho cos theta। So let rho is, हमने क्या किया कि एक एरिया एज्यूम किया, यहाँ से रो दूरी पे ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज़ रो, फिर हमने यहाँ से थीटा डिग्री पे लिया था, उससे डी थीटा आगे, तो ये हमारा एक एलिमेंट बना। तो इस एलिमेंट को अगर हम देखें तो इस एलिमेंट का ये साइड x है यहाँ से दूरी, और यहाँ से y दूरी है, और ये जो इसकी थिकनेस है रेडियल डायरेक्शन में दैट इज़ डेल्टा रो। सो x इज इक्वल टू रो कॉस थीटा, सिंपल ज्योमेट्री है, y इज इक्वल टू रो साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है, टिग्नोमेट्री से है। तो डी ए कितना हो जाएगा, रो डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी रो, ये हमारा एरिया हो गया। नाउ आई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी ए, इसमें वो सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब इसको डबल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 to r रेडियल डायरेक्शन में, और 0 to π/2 इसको पूरा कवर करने के लिए। थीटा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट होगा पूरा 0 to π/2, और जो रेडियली चलेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 0 to
r जो इसकी रेडियस है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपॉन सिंप्लीफिकेशन इसको पहला इंटीग्रेट किया 0 to pi by 2 sin 2 theta by 2 d theta, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन वी विल इंटीग्रेट फॉर द अनदर लिमिट 0 to pi by 2, जो थीटा को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट r4 r की पावर 4 अपॉन 16 इंटू 2, तो इट विल बिकम r की पावर 4 by 8. So for quadrant product of inertia will be r raised to the power 4 upon 8. So this is the product of inertia which we are going to use sometimes in the numerical problems. Now parallel axis theorem for product of inertia. तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो देखा है कि हम लोग जो सेंट्रोइडल एक्सिस का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम एरिया और दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट इसको हम ऐड कर देते हैं, तो देन वी कैन गेट द करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. बट लेट अस सी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो आई एक्स वाई की बात करते हैं. तो फ्रॉम द डेफिनेशन आई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स बार इंटू वाई डैश प्लस वाई बार इंटू डी ए. तो जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होता है ना, एक्स वाई इंटू डी ए. अब अगर हम पहले हम यहाँ पे थे, इस एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे, अब हमने ये एक्सिस दूसरी शिफ्ट की, यहाँ से वाई बार और यहाँ से एक्स बार दूरी पे एक और एक्सिस ले ली हमने जो ये है, जिसमें एलिमेंट अब हो गया एक्स डैश दूरी पे और वाई डैश दूरी पे यहाँ से. तो हमने इस वाली एक्सिस के अबाउट हमको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो उसके लिए नया एक्स और नया वाई, तो ये हम लोगों ने रख लिया बाय डेफिनेशन. सो आई एक्स वाई विल बिकम, इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद सेपरेट आउट कर लिया, सेपरेट आउट करने के बाद वी नो एक्स डैश वाई डैश इज आई एक्स बार एक्स वाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जो हमें कैलकुलेट करना है. ए एक्स बार वाई बार, ये डी ए को हमने इंटीग्रेट किया तो इट बिकम एरिया, सो ए इंटू एक्स बार वाई बार प्लस ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है जो हमेशा जीरो रहता है. So that's why we get I x y is equal to I bar x y plus a into x bar y bar. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो we get I x y is equal to, so this is the parallel axis theorem for product of inertia. So product of inertia of any area with respect to any pair of rectangular axis अगर हम बात करें in its plane is equal to the product of inertia of area with respect to the same pair of parallel concentroidal axes plus the product of the area, मतलब ये वाला product of the area and the coordinates of the centroid of area x bar y bar with respect to the given pair of axes. तो जो पुराना है तो ये हमारी parallel axis theorem है product of inertia के लिए, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी. अब एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं एल सेक्शन का, जिसमें दो स्क्वायर्स, दो रेक्टेंगल्स हैं. अगर उनका निकालते हैं कैसे, तो आई एक्स वाई पहले का अगर हम देखें तो जो पहला वाला है फर्स्ट वाला हमारा, तो उसमें जाएगा 0 + 2 × 10 × 5 × 1, तो ये 100 सेंटीमीटर की पावर 4 आ गया. आई एक्स वाई सेकेंड का अगर हम निकालें तो 0 + 2 × 13 × 1 × 8.5 221 आ गया. अब जब आई एक्स वाई टोटल निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेपरेट निकाल लीजिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेपरेट, और दोनों को जोड़ दीजिए. यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंबाइंड एल सेक्शन. सिमिलरली फॉर सी सेक्शन में, अब सी चैनल में क्या है कि यहाँ पे दो एरियाज, तीन एरिया हैं 1 2 एंड 3, तो तीनों का अलग अलग निकाल लीजिए. तो खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 प्लस 10 × 2 × 5 × 1, ये 10 × 2 मीन्स एरिया हो गया. बिल्कुल सिंपल है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है. सो दिस इज द जीरो, मतलब कि खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट वो जीरो हो गया, तो वो जीरो है, और ये एरिया हो गया, और पहला क्वाड्रेंट 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट 1, तो 5 × 1 तो ये 100 सेंटीमीटर की पावर 4 इस वाले के लिए अगर हम देखें 1 के लिए. सिमिलरली फॉर सेकेंड 0 + 11 × 2 एरिया हो गया, 1 × 7.5 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो 165 आया. तीसरे के लिए 0 × 10 × 2 ये एरिया हो गया, 5 × 14 मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 14, तो वो उसने 5 × 14 ले लिया, तो ये 1400 सेंटीमीटर की पावर 4. तो जब हम इसको तीनों को ऐड करेंगे वी कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट सी चैनल, दैट इज 1665 centimeter raised to the power 4. So likewise we can solve the
small numericals for calculating the moment of product of inertia for any composite figure. तो जैसे composite means जैसे 3 rectangle को मिला के एक C channel बना, तो ये composite figure है. तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसका product of inertia निकाल सकते हैं. Now this is a topic of transformation laws for moment of inertia and product of inertia. अब suppose करिए कि हमारी जो initial axis है वो initial axis ये है. अब अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दूसरी एक्सिस पे जो कि थीटा डिग्री अगर रोटेट कर दिया जाए, इसको नई एक्सिस आ गई हमारी वाई डैश और एक्स डैश, इसको थीटा डिग्री रोटेट करा के तो हमारी नई एक्सिस होगी. तो इनिशियली जो हमारा ये एरिया था जो एक्स दूरी पे था, वाई दूरी पे था, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, अब जब रोटेट कराएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स विल बिकम एक्स डैश एंड वाई डैश. कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम लोगों ने क्या किया कि इसको हमने इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज पूरे सिस्टम को ही रोटेट कराया. सो इट हैज़ बिकम क्वाइट सिमिलर टू द ओरिजिनल वन. ये जो ओरिजिनल वन वाला था हमारा उससे हो गया. अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमको आई एक्स आई एक्स वाई हम लोगों को चलिए पता था, लेकिन अब हमें आई एक्स डैश आई वाई डैश और आई एक्स डैश वाई डैश हमको कैलकुलेट करना है नई एक्सिस के अबाउट. तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा. तो आई एक्स डैश विल बी इक्वल टू आई वाई डैश स्क्वायर डी ए, ये बनेगा. अगर हम इसको देखें तो वाई डैश सिंपल ज्योमेट्री है, पी ए इज इक्वल टू पी बी माइनस ए बी. अगर हम इस वाले से इसको कैलकुलेट करें तो ये इस तरीके से हमें मिलेगा. सिंप्लीफाई करें इसको, पी बी माइनस डी सी इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा. तो उसके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा आई एक्स डैश इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा स्क्वायर. ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. तो वी विल गेट दिस इक्वेशन हेयर. अब ये आई एक्स डैश इज इक्वल टू जिस रिलेशन आया इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया. तो इट हैज़ कम आई एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन 2 थीटा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम आई वाई डैश, ये आई एक्स डैश का हमारा ये फॉर्मूला आ गया. अब सिमिलरली फॉर आई वाई डैश, तो आई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर डी ए. सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, तो एक्स डैश की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, सिंपल जो सामने वाली जो ज्योमेट्री है उससे निकालेंगे. सो वी विल गेट आई वाई डैश इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी इसमें रिलेशन में. अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी हैव गॉट दिस रिलेशन. सो आई वाई डैश की जो वैल्यू है यहाँ से दैट हैज़ कम आई एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई एक्स वाई साइन 2 थीटा. ये हमारा आई वाई डैश आया. तो जब हम आई एक्स डैश वाई डैश निकाल रहे हैं तो दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डैश वाई डैश डी ए. तो अगर हम इसमें एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी, एक्स डैश ये रखी और वाई डैश ये रखी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, वी विल सिंप्लीफाई एंड रीअरेंज द टर्म्स, देन वी विल गेट आई एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू आई एक्स वाई कॉस 2 थीटा प्लस हाफ आई एक्स माइनस आई वाई साइन 2 थीटा. अब अगर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से. तो आई एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो उसके लिए tan टू थीटा इज इक्वल टू दिस. तो एक ऐसी एंगल हमको मिलता है जहाँ पे कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट बिकम्स 0. सो थीटा बिकम्स हाफ tan इनवर्स 2ixy अपॉन आई माइनस आई एक्स. सो इट मीन्स द एक्सिस फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज 0 आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करेंगे. तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती हैं कि जो जहाँ पे जो मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा. जब हम इसको एंगल को रोटेट कर रहे हैं तो जो हमारी जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो या तो घट रही है या बढ़ रही है. तो ऐसी एक्सिस जहाँ पे कि हमारी जो वैल्यू है घटते बढ़ते जो है वो ऐसी एक्सिस मिले जहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाए. तो जहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होगा उन्हीं को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसमें, क्योंकि हम एंगल रोटेट कर रहे हैं उसका. तो एक थीटा ऐसा मिलेगा हमें जहाँ पे कि हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो आई एक्स डैश वाई डैश है वो 0 हो जाएगा. तो वहीं पे हमको एक्सिस मिलेंगी और वो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी. तो आई एक्स डैश ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. तो फॉर आई एक्स टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम होंगी दो वैल्यू होंगी, एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी. तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन हमको मिलेगी. तो वो अगर हम देखें तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी आर गेटिंग द सेम जो कि हमें पहले मिल रहा था. इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं वो एक्सिस हैं जहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आइदर वुड बी मैक्सिमम और मिनिमम.
सॉरी वो 0 होगा, तो वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो 0 होगा हमेशा, और उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए हम लोग चेक कर लिया कि वहीं पे जो है हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो वही वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो थीटा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एवरी 180 डिग्री आफ्टर इट वुड बी रिपीटिंग, सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ थीटा डिफर बाय 90 डिग्री, तो हर 90 डिग्री के बाद वो रिपीट करेगा और 180 डिग्री के बाद वो 2 थीटा उसका रिपीट करेगा। सो फॉर वन वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ आई एक्स डैश विल बी मैक्सिमम एंड द अदर वुड बी मिनिमम, तो एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम होगी। So, let us take a very simple numerical problem. This is the moment of inertia of unequal lag angle iron section as shown in following figure with respect to the axis passing through the centroid. तो हमें एक L section दे रखा है और उस पर हमें जो है moment of inertia of unequal lags हमको calculate करना है। तो यहाँ पे area हमको पता है, दोनों area निकाल सकते हैं। We have divided it into two areas. First is this and second is this. तो इस तरीके से अगर हम करें तो A1 A2 हम दोनों निकाल सकते हैं। टोटल एरिया वुड बिकम 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी विल कैलकुलेट दी एक्स बार, ये ऑलरेडी हम लोग सिंपली सब कर चुके हैं। सो एक्स बार हम लोग निकाल सकते हैं A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन टोटल A। तो ये फर्स्ट स्लाइड में जो डिस्कस किया था, तो एक्स बार हैज़ कम 2.739, वाई बार हैज़ कम 5.239 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आई एक्स बार अगर हम देखें तो सिंपल बी एच क्यूब बाई 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने लगाई, तो दैट हैज़ कम 1008.703 सेंटीमीटर की पावर 4। सिमिलरली आई वाई बार में भी वो एच बी क्यूब बाई 12 अगर हम वो लगाते हैं, सो वी विल गेट 356.203 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 4। तो लाइकवाइज वी कैन गेट द आई एक्स बार, आई वाई बार। देन आई एक्स बार, आई बार एक्स बाई अगर हमको कैलकुलेट करना है, so we will have to apply the formula and then we can get this. So total area we have got, so by this we can get A1, उसको हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट किया तो दैट इज माइनस 339.13 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 4। सो इसमें tan 2 थीटा हम निकाल के चेक कर लेते हैं। सो इट इज़ कमिंग 1.0323948, ये फार्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं अभी पिछले सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। सो 2 थीटा की वैल्यू अगर निकालें 46 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट थीटा की वैल्यू आई, उसमें 90 डिग्री के बाद वो रिपीट करेगा 113 डिग्री। तो आई यू अगर हम निकालें, सो दैट इज़ आई एक्स बार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई वाई बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन 2 थीटा, क्योंकि हमें ये निकालनी है आई यू की वैल्यू। सो दैट इज़ कम 1153.036 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 4। तो आई यू प्लस आई वी ये फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं। सो दैट हैज़ कम 1364.906 centimeter raised to the power 4. So this is the numerical and then we can get the value of IV. तो IV की वैल्यू अगर देखें तो ऑलरेडी हम IU कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ पे अगर हम फार्मूले के अंदर रखेंगे देन वी कैन गेट 211.87 सेंटीमीटर की पावर 4. सो लाइकवाइज वी कैन डू द सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दे लुक लाइक सिंपल. So I hope you have understood the concept of the beam properties. So now in the next lectures we can have a discussion on the unsymmetrical bending. So I hope you enjoyed and you do practice at your home. Thank you so much for listening.